Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, with SBI PO notification out and vacancies are very low, many of you have asked one question: Sir, should we apply? Should we try for this or not? Now, here I will give my view, and these are just estimates. You have to take your own call. First thing is, if you have already prepared for this exam, or you are preparing for this exam, or you intend to prepare for this exam, under all these circumstances, there is no harm if you appear for the examination. Although vacancies are less, although competition is very high, and even with such a low number of vacancies, the number of applicants may be still at the same level that of last year, keeping in view the unemployment in the country. But by not appearing, you are simply passing on the chance. With no other major exam in next 3 months. So if you try your level best, prepare well for the exam, still within this 600 vacancies, one may get chance to be selected. I am not saying that it is a difficult call, yes, but without trying, leaving a competition is also not giving you anything. Now people are trying for LICAO, still vacancies are less, still they try. Similarly, in RBI grade B, vacancies are less, still they try. So since in SBI PO, you are already making efforts, you are already preparing, and no clash of exam is anticipated. There may be some exam, but I don't see there is any major clash of exam during this period. So if we look at two situations, one, not appear for exam, and second, appear for exam, I think the favorable condition is prepare for exam. Even if some people prepare for this exam and they are not able to make it to SBI PO, and if their age is still available, this preparation may be helpful for future exam of 2025, for RRB exam, maybe for IBPS exam, and other exams also. So by all permutation and combinations, and after looking at the response of the candidates, although this is a shocking news that nobody was anticipating that vacancies will be too low, because now we are used to around 2000 vacancies per annum. I have gone through the staff data also. For last 3 years there is a continuous fall in staff strength of State Bank of India. That means they are needing staff, but despite that they have come out with low vacancies. This is very surprising move. But anyhow, as a candidate, we can only compete that is available on the table. And on the table, SBI PO vacancies are low. There is no harm in preparing and going all out for this examination. But still, it is your own call. If you feel it will take away your time, it will waste your fee or something like that, you can take decision according to that. But if you are intending to appear for banking exams, this exam can be either helpful to get the job or can be helpful to get experience for future exams. Rest is your choice. I have shared my thoughts since you were soliciting my thoughts, what should be done. So I am giving you clear cut thoughts. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. SBI PO का नोटिफिकेशन आया, काफ़ी शॉकिंग है, कम वैकेंसीज हैं. और जब कम वैकेंसीज आई हैं और जो हमारी एंटीसिपेशन नॉर्मली होती है, क्योंकि कई साल से 2000 वैकेंसी पर एनम आ रही थी, तो एक धक्का लगता है, और ऐसा सबको लगा है. अब इसमें एक प्रश्न आप लोगों से निरंतर पूछा जा रहा है कि सर हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. अब ये जो डिसीजन है ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन है, मगर मैं कुछ
चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मुझे नज़र आ रही हैं। पहली चीज़ ये है कि एक एग्ज़ाम की हम मान लो तैयारी करते आ रहे हैं, या तैयारी कर रहे हैं, या तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उसमें उस एग्ज़ाम में बैठने में हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। वैकेंसीज कम है, कंपटीशन टफ होगा, कट ऑफ हाई हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं, मगर उसको हम नहीं क्रैक कर पाएंगे बिना एग्ज़ाम दिए, ऐसा मान लेना भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्योंकि जो भी लोग हैं, आप ही में से 600 लोग इसको अल्टीमेटली पार करेंगे, तो इसलिए इसको एक मौका देना बनता है। फिर भी आपकी अपनी सोच है, अगर आपको लगता है कि इससे मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, इससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो डिसीजन आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मगर अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं या कंपटीशंस की तैयारी करते आ रहे हैं और एक कंपटीशन सामने आ गया है और अगले 3 महीने में कोई और मेजर एग्ज़ाम इसके साथ क्लैश नहीं हो रहा है, तो इस एग्ज़ाम में बैठ जाने में भी कोई हर्ज नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि अगर आप कोई सोचे कि बहुत कम कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ऐसा भी नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर है, उसको मद्देनज़र एप्लीकेशन इसमें भी बहुत आएंगी। आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे ये आपके ऊपर है, मगर और नहीं अप्लाई करेंगे ऐसा नहीं है। अप्लाई लोग करेंगे, एप्लीकेशंस भी काफ़ी होंगी, कंपटीशन भी काफ़ी होगा। इसलिए जो भी आपको फैसला करना है, सोच समझ के करना है, कि ये ना हो कि बाद में ना अप्लाई करने से ये रिग्रेट रह जाए कि शायद मैं कर देता और वो व्यक्ति हो गया जिसकी मुझसे कम तैयारी थी। ऐसा भी कई बार होता है। जब हम दोस्तों में आपस में बैठ के तैयारी करते हैं तो कई बार हमें लगता है कि इसकी तैयारी कम है, मगर वो तो निकल जाता है, और मुझे लगता है मेरी तैयारी ज़्यादा है, मैं नहीं निकलता हूँ। उस समय हमें बहुत दुख होता है। इसलिए इस स्टेज के ऊपर ये फैसला करना कि मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये बहुत कठिन है। और इसलिए इसके अंदर आसान विकल्प क्या है कि एग्ज़ाम देने में क्या हर्ज है। तैयारी आप कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम दे देंगे तो इसमें हर्ज क्या है। उसके अंदर दो ही तो चीज़ें होंगी ना, या तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे या आप सेलेक्ट नहीं होंगे। मान लो सेलेक्ट नहीं हुए तो भी आपने कुछ गंवाया तो नहीं। हाँ, जो फीस है वो चली गई आपकी, या जो आपका खर्चा हुआ वो चला गया, मगर उससे जो आने वाले 2025 के एग्ज़ाम है उसके लिए आपकी तैयारी तो का मोमेंटम बना रहेगा। अब आप देखेंगे LIC AO में कम वैकेंसी होती है, फिर भी लोग एग्ज़ाम देते हैं। RBI ग्रेड B में लो वैकेंसीज होते हैं, फिर भी वो एग्ज़ाम देते हैं। हालांकि मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जहाँ कम वैकेंसीज हैं उनके मुकाबले आपको उन एग्ज़ाम्स को प्रेफर करना चाहिए जहाँ हाई वैकेंसी है। बट अब SBI एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको ना दें ऐसा भी नहीं हमें लगता, और जिसको दे दें वो भी थोड़ी कठिनाई आ गई कम वैकेंसी आने से। तो ये एक बहुत ही विचित्र स्थिति कैंडिडेट्स के सामने आ गई है, क्योंकि कई एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहां हमें बिल्कुल स्पष्टता होती है कि 30, 40, 50 वैकेंसी है, हमें यहाँ नहीं जाना, या यहाँ जाने में हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। पर ये ऐसा एग्ज़ाम है कि जिसको आउटराइटली छोड़ना भी मुश्किल है, और देने में तो कठिनाई सामने नज़र आ ही रही है, क्योंकि वैकेंसी कम है तो कट ऑफ क्या होंगे ये जानना बहुत ही असंभव लग रहा है। तो मेरा विचार ये है कि इसको आप बड़े खुले मन से और बहुत ही संयम के साथ डिसीजन लें। आवेश में आके या कुछ लोगों के कहने से कि क्या फ़ायदा है देने से, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उस पर ना जाएं। आप अपने मन से विचार करें कि क्या एग्ज़ाम देने से मुझे कोई नुकसान है, या एग्ज़ाम देने से मेरा एक मौका बनता है कि शायद मैं इसको क्लियर कर लूँ और मैं अपने एफर्ट को बढ़ाऊँ। क्योंकि कई बार जब बहुत बड़ी चुनौती आती है तो आदमी कई बार उस चुनौती को स्वीकार करके उसको भी पार करने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा जैसे कई लोग कहते हैं जी आप ये कह दो कि हमें तो एक ही सीट चाहिए। नहीं, मैं इस तरह की अव्यवहारिक चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हम लोगों के अपने निजी विचार हो सकते हैं, मगर मेरा मानना ये है कि अब कम है ज़्यादा है उसमें तो मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो इसमें मुझे मौका लेने में
नुकसान है या मौका ना लेने में नुकसान है, ये हमें सोच के अपना फैसला करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम एग्ज़ाम में अपनी पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करके जुट जाएं और एक बार एग्ज़ाम दे दें और फिर देखा जाएगा जो होगा जब रिज़ल्ट आएगा। अभी से हम क्यों गिव अप करें। गॉड ब्लेस यू।